Amen. Amen. Hallelujah. God's people say Amen. Hallelujah. Hope you are happy. Amen. You are ready to receive the word of God. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आनंदित हैं और खुदावन के कलाम को रिसीव करने के लिए तैयार हो। So we are continuing the same study that I started last week. और हम उसी शीर्षक में जाने वाले, आगे बढ़ने वाले हैं जो मैंने पिछले हफ्ते सिखाया था। Because we are very responsible people on this earth. क्योंकि हम काफी जिम्मेदार के लोग हैं इस पृथ्वी पर। We represent God on this earth. और हम खुदावन को दर्शाते इस धरती पे। Hallelujah. If people want to know who is God and people want to experience His power, they should know through us. और अगर किसी को चाहते हैं कि कोई खुदावन की पहचान में आए तो पहली बात तो वो हमको जानेंगे। Therefore, God is teaching us how we have to speak well. और इसीलिए खुदावन हमें सिखा रहा है कि किस तरह से हम उसके पाक कलाम को सिखा सकते हैं। So last week we studied from Matthew chapter 12 verse number 37. और पिछले हफ्ते हमने सीखा था मैथ्यू की किताब 12:37 में, Where Jesus said, by your words you will be justified and by your words you will be condemned. और खुदावन ने हमें सिखाया था कि हम पढ़ेंगे कि मत्ती 12:37 में लिखता है कि क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। And in the verse number 36, Jesus warning us, but I tell you that man will give an account on the day of judgment for every careless word they have spoken. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वो हरेक उस बातों का लेखा देगा। So our words are very important to shape our future. इसीलिए हम हम क्या बात करते हैं बहुत जरूरी हम ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर को बताएगी। Our words are going to influence our children's. और यही जो बातें हम बोलते हैं वो हमारे बच्चों के ऊपर भी उसका असर गिरेगा। So as per verse number 37, if I use the right word, through that word I will be justified. और जिस तरह से मैं सही तरह के शब्द और बातों को इस्तेमाल करता हूँ तो उससे मैं निर्दोष ठहराया जाऊंगा। So we saw in James chapter 1 verse number 26. और याकूब की किताब 1:26 में लिखा है, why we should use the right words. क्यों हमने सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। Because it is written, if anyone seems to be religious or righteous or spiritual person and not bridle or control his tongue, he deceives his own heart, and that man's religion or spirituality or prayer is useless and vain. हम पढ़ेंगे याकूब की किताब में जेम्स 1:27 में, हमारे 26 में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। So as a born again believer, we have to be careful what we speak about ourselves, about our family, about our pastors. और जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हमने बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्या बातें हम बोलते हैं हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे पास्टरों के बारे में। So once we prayed for a person, we have to speak the solution. और किसी के लिए हम जब दुआ करते हैं उसके बाद हमने सिर्फ सोल्यूशन कहना है। So we saw why our words are important, because we saw when we release the word, there is two forces are there to respond that word. और हम देखते हैं जब हम वचन कलाम देते हैं या कोई बात कहते हैं तो वहाँ दो तरह की ताकत का काम होता है। We saw in Daniel chapter 10 verse number 12, when Daniel started to pray, when Daniel humbled and started to pray, the angel appeared to him and he told, I came to you because of your words. और हम जानते हैं कि हम अगर दानियल की किताब में पढ़ेंगे तो 10:12 में परमेश्वर कहता है, मैंने स्वर्गदूत इसीलिए आए तेरे स्वर्गदूत आके दानियल को बोलता है, मैं इसी कारण तेरे पास आया हूँ, because of your word, तेरे शब्द के कारण, means I am here because of your words. और मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि आपके शब्दों के कारण। Hallelujah. So it is important, hallelujah, to use the right words in the prayer.
इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सही तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें दुआ करते वक्त. So we saw in Jesus' life in Matthew chapter 4:11 we saw, hallelujah, when devil left him, the angels came to minister him. और हम देखते हैं कि यीशु जब आजमाइश में पड़ा हुआ था तो तभी उसके शब्दों के कारण वहां स्वर्गदूत प्रकट हुए. And we studied that God has given us the thousands of angels. और हम देखते हैं कि खुदावन ने हमें हजारों स्वर्गदूत को दिए हैं. So what we speak, the angels hears. क्योंकि जो बातें हम बोलते हैं वो स्वर्गदूत सुनते हैं. So we have to speak the right word every time. इसीलिए जब भी हम अपना मुंह खोले तो हम सही शब्दों का इस्तेमाल करें. Hallelujah. So Psalms 103 verse number 20 says, "Bless the Lord, O you angels, you mighty one who do his word." और हम देखते भजन संगीता 103 में लिखता है, 103:20 में लिखता है कि तेरे आवाज को सुनकर, तेरे शब्दों को सुनकर वही हम करते हैं. Oh Lord, bless the Lord, O you angels, you mighty one who do his word. हे यहोवा के दूत, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो. ये वचन में लिखा है, the फरिश्ते, the angels are ready to fulfill the word of God. और हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वर्गदूत तैयार है जो परमेश्वर के जो योजना को पूरा करने के लिए. So when we pray, we should use God's word every time. इसीलिए जब हम दुआ करते हैं तो खुदावन के शब्द को हम इस्तेमाल करें. We should know what God has promised to us and what is the will of God. We have to use those words. We have to declare those words, because when we speak that word, the angels will respond to that words. और हम जब भी दुआ करते हैं या कोई भी बात बताते हैं तो हमने खुदा के कलाम का इस्तेमाल करना है. जो खुदा की मर्जी है उसी को बोलना है. But 2 weeks before we studied, when Israel used the negative words, the murmuring words, we saw the serpent came to bite them. और हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग हैं, जब परमेश्वर के खिलाफ बात करने लगे, परमेश्वर के सेवक के खिलाफ बात करने लगे, तो सांप ने आकर उनको डस लिया. That is in Numbers 21, chapter 21, verse number 5 and 6. And the people spoke against God and against Moses. And verse number 6 says, "So the Lord sent fiery serpents among the people, and the serpent bite the people, and many people died." हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं गिनती की किताब में 21:5 में यहाँ पर लिखता है, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी और ना तो पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है. अर्थात यहोवा ने उस लोगों के तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए. It is very sad thing, because they spoke against God, the God's anger arose, and result the serpent came and they bite them, and many are died. और हम देखते हैं कि इजरायली लोग परमेश्वर के खिलाफ बात करने लगे, मूसा के खिलाफ बात करने लगे, इसीलिए उनके पास जहरीले सांप आकर उनको डस दिए और काफी लोग मर गए. अगर वो लोग खुदा के विरुद्ध बात नहीं करते थे, instead of speaking against God, instead of murmuring against the man of God, if they would have prayed or praised or humbled themselves before God, what will be the result? अगर वही लोग अगर परमेश्वर के खिलाफ बात करने के बजाय परमेश्वर की तारीफ करते थे, स्तुति आराधना करते, और मूसा के खिलाफ बात करने के बजाय परमेश्वर को आराधना करते और धन्यवाद देते, खुदा के सामने झुकते थे, हालेलुया, they would have lived, they would have died. वो मरते नहीं थे, वो जिंदा रहते थे. So it is very important, your future is in your tongue. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर आपके जबान में है. Once God has saved you, once God has brought you to the light, you have to speak life. और एक बार परमेश्वर ने आपको उजाले में लेकर आया है और जिंदगी दी है, तो आपने जिंदगी की ही बातों को बोलना है. You may be tempted to speak wrong words
against your children, but don't speak those words. Speak the best word, life-giving word, because children are the gift from God. और बहुत बार हम ऐसे परेशानी में हो जाते हैं तो हमारे जबान से गलत बातें निकलती हमारे बच्चों के लिए, पर हमने बहुत चौकस और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो दिए हुए परमेश्वर से गिफ्ट है हमारे लिए. And we learned last week, by our words we are justified. और हम देखते हैं हमारे वचन के कारण हमारे जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसी से हम निर्दोष ठहराए जाते हैं. So you want to know who you are inside, how you are inside? अगर आप जानना चाहते हो कि बिथरी मनुष्य, अंदर का मनुष्य कैसा है, You want to know what type of spirit you are possessed? और आप जानना चाहते हो कि किस तरह की रूह आपके अंदर भरी हुई है, Just hallelujah, record your words when you are angry. और जब आप गुस्से में होते हो तो अपने ही बोल को रिकॉर्ड करो. So then you will come to know what type of person you are. तब आपको पता चलेगा कि अंदर ही मनुष्य किस तरह का है. You may be look beautiful, handsome before the screen, हो सकता है हम बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत हो, and you maybe have such a meaty bath. Praise God for that gift. But the real person is the one who is inside. किस तरह हम अच्छी बातें बोल सकते हैं, पर अंदर का मनुष्य है जो उससे निकलती है वो जो बातें. As a born again person, the God wants we should be always truthful. और जैसे हम मसीह हैं, हम परमेश्वर से नए सिरे से जन्मे हैं, तो हमने हमेशा सच्चाई बोलनी है. So today we are going to see the second part of our study, why we should be truthful. और आज हमारा दूसरा भाग है कि क्यों हमने हमेशा सच्चाई में चलना है. Because Proverbs chapter 6 verse number 17 says, God hates lying tongue. और नीति वचन 6:17 में लिखता है कि परमेश्वर झूठी जबान का नफरत करता है. Hallelujah. You may be heard, many preachers are preaching, hallelujah, God loves you, God loves you. ये सच नहीं है. अगर आपके अंदर झूठ है, खुदा आपसे प्यार नहीं करता है, खुदा आपको नफरत करता है, आप कितना भी प्रार्थना करो और प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि खुदा के नजर में वो व्यक्ति एक झूठा व्यक्ति है. Hallelujah. In Proverbs 6:17, the Bible says, the lying tongue that God hates. और यहाँ नीति वचन में 6:17 में लिखता है कि परमेश्वर पसंद नहीं करता है झूठ बोलने वालों को. If you are a born again, truly born again, you are born of God, you will not lie, you will speak truth always. और आप नए सिरे से जन्मे हो, अब आप मसीह कहलाते हो, तो हमेशा आपके जबान में सच्चाई रहेगी. If you read Ephesians 4 chapter 4 verse number 25, where God encouraged the believer, let everyone, there is no option, speak truth to his neighbor. और फिर एफिसियों की 4:25 में लिखा है कि हर एक जो मसीह है वो हमेशा सच्चाई की बात बोले. अगर हम मसीह है, हम यीशु को पहना है, अगर हमने बपतिस्मा लिया है, we don't have any choice other than speak the truth. और हमारे पास और कोई चुनाव नहीं है पर लेकिन सिर्फ सच्चाई बात करने की. So our words are very important. इसीलिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने ध्यान देना चाहिए. We saw through our words we activate the spiritual realm. और हमारे शब्दों के कारण हमारे पास दो तरह के दरवाजे खुलते हैं. We activate spiritual realm. आत्मिक जो वलय है उसको हम एक्टिवेट करते हैं. If we murmur against God, if you speak negative against God, we bring negative in our life. If you speak the word of God, we activate angels in our life. और हम देखते हैं कि दो दरवाजे के आत्मिक रेल्म खुल जाते हैं हमारे लिए. जब हम कुड़कुड़ाते हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो गलत दरवाजा खुल जाता है हमारे लिए. और जब हम परमेश्वर के वचन को और उसके शब्दों की बात करते हैं तो स्वर्गदूत हमारे हेल्प के लिए आते हैं. So today we are seeing why we should always be truthful. और आज हम सीखने वाले कि क्यों हमने हमेशा सच्चाई से बात करनी चाहिए. Because lying tongue Jehovah hates. क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं करता है झूठ बोलने वालों का. And God has given us the instruction that everyone, those who are born again, they must speak truth. और हर कोई मसीह है उसको एक आज्ञा दी गई है कि वो हमेशा सच्चाई बात करे. Suppose if someone is speaking lie, अगर हो सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है. maybe in the time of testimony there is many lies are there, and you may be seen in the सेवकाई. बहुत सारे सेवकाई में जो दिखाता है एक होता है एक, but God says
I don't like those things. और जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे सामने हम देखते हैं कि लोगों के लाइफ में चीज दूसरी होती है और वो बताते कुछ और है, और ये परमेश्वर पसंद नहीं करता। We are going to read, everyone, we are going to read John chapter 8 verse number 44, why we should be truthful, why we should speak the truth every time. और यूहन्ना 8:44 में क्यों हमने हमेशा सच्चाई से बात करना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। Because by your words we can know who is your father. क्योंकि हमारे शब्दों के कारण हमें लोग पता करेंगे कि हमारा पिता कौन है। If I am speaking the truth every time, अगर मैं हमेशा सच्चाई ही बोलता हूँ, that means I am born of God. इसका मतलब है मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। And I have the Holy Spirit in me. और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Suppose if I speak lie every time, और अगर कोई शख्स है जो हमेशा झूठ बोलता है, the verse number 44 says, John chapter 8 verse number 44 says, for you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out his own character, for he is a liar and the father of lies. हम यूहन्ना 8:44 में पढ़ेंगे, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है और वरन झूठ का पिता है। So why we have to speak truth? There is no choice for a believer. और इसीलिए हमने क्यों सच्चा ही बात करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई चुनाव नहीं है। Because you are born again, you are born of God. क्योंकि आपने नए सिरे से जन्म लिया है, आप खुदावन से पैदा हुए हो। So if you are born of God, your tongue will be not a lying tongue. Your tongue will always have a truth. और जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, हमारे पिता से जन्म लेते हैं, तो हमारी जबान बदल जाती है और इस जबान में सिर्फ सच्चाई आती है। So through this word we'll come to know, by your word we can discern who is your father. और हमारे शब्दों के कारण से ही हम पहचाने जाएंगे कि हमारा पिता कौन है। If I speak truth, that means I am born of God. अगर मैं सच्चा ही बात करता हूँ, इसका मतलब है मैं खुदावन से जन्मा हूँ। If someone is lying in the house of God, if someone is lying to his family, that means he is not the child of God, he is a child of devil. अगर कोई परमेश्वर के घर में झूठ बोलता है, अपने खुद के घर में झूठ बोलता है या झूठ का स्वभाव है, तो इससे पहचान होती है कि वो शैतान का बेटा है। And if there is a liar and I am saying God loves you, खुदावन आपको भला करेगा, मैं उससे भी बड़ा झूठा हूं। So it is very important as a man of God, as a servant of God, speak the truth, not the lies. और जैसे हम परमेश्वर के खादिम है, परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो ये हमारा अधिकार है कि हम सिर्फ सच्चाई को बोलें। So when person is speaking lie, it is the nature of devil. और हम देखते हैं कि जो कोई झूठ बोलता है, वो जो शैतान का स्वभाव है। He will express the nature of devil. He is manifesting the nature of devil. He is manifesting the spirit of devil. और वो उस स्वभाव को दर्शाता है जो शैतान का स्वभाव है। जो शैतान झूठ बोलता है, वही स्वभाव। वो झूठ का पिता है और झूठ शैतान से पैदा हुआ है और उसके अंदर सच्चाई नहीं है। So you might be seen the many politicians, including most of the politicians, they are liars. Why? Because they are not born of God. और हम देखते हैं कि जितने जो पॉलिटिक्स में हैं, जो एमएलएज हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि वो नए सिरे से जन्म नहीं लिए हैं। But we born again people always stand for the truth, speak the truth, live in the truth. Then only God will be our Father. और जो हम मसीह हैं, जो नए सिरे से जन्मे हैं, हमने सिर्फ सच्चाई को बोलना
लगा है, सच्चाई हमारे जिंदगी में होनी चाहिए, तभी वो दर्शाएगा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। So why our words are very important? क्यों हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है? We saw in Matthew chapter 12 verse number 37, by our words we are justified. क्योंकि मत्ती में लिखा है कि हमारे शब्दों के कारण ही हम निर्दोष ठहराए जाते हैं, And by our words we will be condemned. और हमारे ही शब्दों के कारण हम दोषी ठहराए जाएंगे। Why our words are very important? According to Matthew 12:36, every careless words we have to be accountable in the time of judgment. इसीलिए मत्ती 12:36 में लिखता है कि हर एक हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हमने संभाल के यूज करना है, क्योंकि हमारे शब्दों के कारण ही हमारे पर न्याय होगा। Why our words are very important in the important? Because we saw in Daniel when he prayed according to his words, the angels appeared. इसे हम देखते हैं डैनियल के जिस तरह के शब्द उसने इस्तेमाल किए, उस शब्दों के कारण स्वर्गदूत उसके पास आए। Why our words are very important? We saw in James 1:26, we already read, if there is no control over our tongue, we are deceiving our heart and our spirituality is useless. और हम याकूब की किताब में पढ़े कि अगर हमारे जबान के ऊपर अगर हमारा काबू नहीं है तो जो भी हम करते हैं वो सारा व्यर्थ है। So why our words are important? Because lying tongue Yahweh hates. हमारे शब्द क्यों जरूरी है कि हम उसको संभाल के यूज करें? क्योंकि परमेश्वर विरुद्ध करता है, उसको पसंद नहीं करता है जो झूठ बोलते हैं। As a believer, God has commanded us in Ephesians 4:25, everyone should speak truth for each other. और हम एफिशिएंस 4:25 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें एक जिम्मेदारी दिया, एक हमें कमांड दिया है कि हम सच्चाई खाली बात करें। So we saw when person speaks truth, that means he is born of God. और जो व्यक्ति सिर्फ सच बात करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। So we are going to see why our words are very important. तो हम आगे जानेंगे कि हमारे शब्द क्यों जरूरी है। We are going to read from Colossians chapter 3 verse number 8. और कोलोसी की किताब में हम पढ़ेंगे 3:18 में, As 8 में। a born again believer, the Bible asking us, the God is asking us, but now you must also put off all these things such as anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. और हम पढ़ेंगे कोलोसियों के 3:8 में लिखता है कि पर अब तू भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। Because we had these things in us. और एक टाइम था जब ये सारी बुरी बातें हमारे अंदर थी। We were filled with this filth. और ये सारी गंदगी से हम भरे हुए लोग थे। But Jesus gave his blood to cleanse us, to wash us, to make us pure. और यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया ताकि हम ये सारे बातों से छुटकारा पाके पाक साफ हो जाए। And he has given his Holy Spirit to us. और उसने अपना पाक रूह हमें दिया है। He has given his words to us. और उसने अपना कलाम, अपना शब्द हमें दिया है। So we should take advantage of all these blessings. और जो कुछ उसने आशीष दी है उसका हमने फायदा उठाना है। We should use this grace to cancel anger from our life. और जो उसने हमें अनुग्रह, जो फजल दिया है, उसको हमें इस्तेमाल करके सारे गुस्सा के रूह को हमारे से And बाहर filthy language from our mouth. और जो भी हम गाली बकते हैं, बुरी बातों को बोलते हैं, उसको निकालना है। We are going to see why we have to remove these things. क्यों हमें ये सारी गलत बातों को हमारी जिंदगी से निकालना Let है। me read from Ephesians chapter 4 verse number 29. हम एफिसियों की किताब में 4:29 में पढ़ेंगे। Do not use any filthy or corrupt or abusive languages. Let everything you say be good and helpful, so that your words be an encouragement and be an helpful and building others to those who hear them. कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। क्यों हालेलुया हमारा शब्द वो सही शब्द होना चाहिए? क्यों के लिए याकूब 3:2 में लिखा है, for we are stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man.
और हम देखते हैं याकूब 3:2 में क्या लिखता है कि इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। Amen. और जो वचन में नहीं चूकता, हालेलुया। The one who will not stumble in the word, he will be considered perfect before God. और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। Hallelujah. In other words, we are praying day and night, very good. We are speaking in tongues, very good. But we have to, hallelujah, put off everything which is abomination to God. और ये बहुत अच्छा है कि हम रोज दुआ करते हैं, हम आराधना करते हैं, पर जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है वो बातों से भी हमें छुटकारा पाना चाहिए। So beauty of the Bible is, when Bible says put off those things, the same Bible gives you the grace to do that. और जो बाइबल कहती है कि ये सारे बातों से छुटकारा पाओ, वही बाइबल हमें अनुग्रह भी देता है, फजल भी देता है वो बातों से छुटकारा पाने के लिए। If you are willing, the God will help you to remove this filth from your life. अगर आप अंदर से ख्वाहिश रखते हो कि ये बातें निकल जाए तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा ये सारे बातों से छुटकारा पाने If you के लिए। desire your tongue should be tongue of life, God can heal your tongue and remove the filth from your tongue. अगर आप चाहते हो, आपकी ख्वाहिश है कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करे, मेरे जबान को छुए, तो परमेश्वर आपके जबान को छुएगा, उसमें सिर्फ चंगाई की बातें आएगी। Why? We must be careful about our words. क्यों हमने संभालना चाहिए कि हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते The हैं। James chapter 3 verse number 6 says, tongue is a fire. क्योंकि याकूब की किताब 3:6 में लिखता है जीभ भी एक आग है। If we don't use tongue carefully, it will defile your whole body. और क्योंकि अगर हम इस जबान को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमारे शरीर को नाश कर देगा। For example, आपके घर में आग रहता है, अगर आग को आपने चाय बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए इस्तेमाल किया, हमारा पेट भरेगा। वही आग को घर को जलाने के लिए यूज किया, घर बर्बाद होएगा। So your tongue is the fire. और उसी तरह से आपका जो जीभ है वो आग के समान है। समान नहीं है, आग ही है। हालेलुया। Your tongue is the fire. और जो जीभ है वो एक आग है। हालेलुया। So it is very important to use your tongue carefully. इसीलिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारे जबान को हम इस्तेमाल करते हैं। For example, I prayed 24 hours, thank God. I fasted for whole week, thank God. But if I release the wrong words, those words will defile my life and spoil my prayer. और अगर मैं पूरे हफ्ते में हम फास्टिंग करते हैं और पूरे हफ्ते में हमने दुआ में लगातार बैठे हैं और उसकी उपासना करते हैं, पर हम फिर उठकर हमारे जबान को गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आप को ही आग लगाते हैं। So let us read the verse number 6. There is 3 more points are there why we should be careful about our tongue. और हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हमने बहुत सावधान होना चाहिए कि किस तरह के शब्दों को हम यूज करते हैं। Yeah, read please. जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। There is 3 things are written in the scripture. One, tongue is fire. एक तो लिखा है कि जबान आग है। So we can use to preach the gospel. एक तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। We can use this tongue to destroy the works of the devil. हम ये जबान को इस्तेमाल कर सकते हैं कि शैतान के सारे कामों को जलाकर राख करने के लिए। We can use this tongue to release the life into others, hope into others. और यही जबान को इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों की जिंदगी में बहाली लाने के लिए। If we use this tongue wrongly, without in the wrong way, और यही जबान को अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, by cursing other, by accusing other, by slandering other, by abusing others, तो दूसरों को दोष लगा के, दूसरों की निंदा करके और दूसरों की बुराई करके, so we defile ourselves. तो हम अपने आप को ही हमारे ऊपर ही हम जैसे आग लगा दिया है। No, defile, गंदा, अपने आप को हम गंदा कर देता है और अपने ऊपर आग लगा देते हैं। So if you are not
careful about your tongue, you defile yourself and you set fire on yourself. अगर हमारे जबान के ऊपर हम ध्यान नहीं लगाते तो हम अपने आप को मतलब हम गंदे हो जाते हैं और अपने ऊपर ही आग लगाते हैं. The saddest thing is we bring the evil of the hell in our families. और हम देखते हैं कि जो शैतान का जो गंदगी है वो हम हमारे परिवार के अंदर लेकर आते हैं. So your tongue is very important for advancement of the kingdom. इसीलिए आपका जबान का बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही परमेश्वर की बादशाही आगे बढ़ेगी. Because you are the king of this universe. क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक राजा बना के रखा है इस धरती पे. So when you release the words, there is two forces are there to fulfill that words. क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो उस तरह का फोर्स आप रिलीज करते हो. Why our words are very important? क्यों हमारे शब्द जरूरी है और इम्पोर्टेंट है. Verse number 8 says, but no man can tame the tongue. It is an unruly evil full of deadly poison. क्योंकि पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता. वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं. वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है. So we saw the tongue is the fire. हमने देखा एक आग को जबान को आग कहा गया है. जबान आग है और if you don't use this tongue carefully, it can defile us. It can set fire on our house. अगर इसको हम It can bring the fire of hell into our house. अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपने आप को खराब कर देते हैं और हमारे ऊपर आग आ जाता है और हमारे परिवार के ऊपर शैतान का जो बादशाही आ जाता है. And not only that, it has deadly poison. और हम देखते हैं ये एकदम विषनाशक बातों को बता देता है. For example, you maybe had a good relationship, a good friendship from last 20 years. हो सकता है आपका जो ऐसा कोई दोस्त है जो 20 साल से आपके साथ अच्छे रिश्ते and you are heart to heart helping each other. आप दिल से एक दूसरों की मदद करते हो. But because of one word from your mouth that destroyed whole relationship that you had from last 20 years. पर हम देखते हैं कि एक गलत शब्द बोलने से जो 20 साल की जो इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी वो खराब हो जाती है. So why our words are very important? इसीलिए क्यों हमारे शब्दों को अब सही रीति से इस्तेमाल करें. The Mark chapter 7 verse number 20 says. और मार्क की किताब 7:20 में लिखता है. He went on saying, what comes out of a person is what defiles them. और जो मनुष्य के अंदर से आता है वही उसे खराब कर देता है. So whatever words that you produce out of your heart, if it is a right word, it will cleanse you. If it is a bad words, it will defile you. क्योंकि जो शब्द हमारे अंदर से आता है वही हमें सही कर देता है और जो शब्द हमारे अंदर से आता है वही हमें खराब कर देता है. So now how to overcome these weaknesses? और किस तरह से हम इस कमजोरियों के ऊपर विजय पा सकते हैं. So Bible encourages us to agree. If you have a bad tongue, agree before God. Yes, Daddy, there is many times I have used this tongue to abuse other, to insult other, to judge other. I don't want to give my tongue to devil. और हम अब परमेश्वर के सामने इकरार कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं कि खुदावन सचमुच में मेरे जबान में ऐसी बात है निंदा करने की, बुरी बात बोलने की, और इससे तू मुझे छुटकारा दे. अगर आपने झूठ बोलता है, ज्यादा नहीं थोड़ा, एक दो, still it is not acceptable before God. अगर हम एक दो झूठ भी बोलते हैं तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं है. So if you are lied and if you are lying, you have a choice to repent and say, Lord, remove the spirit of lie from my life. अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप अभी भी झूठ में हो, तो आपने परमेश्वर के सामने करार करना है कि परमेश्वर इस झूठी बात से मुझे छुटकारा दे दे. Because you are born again, you are a born of God, you cannot lie. क्योंकि आप नई सिरे से जन्मे हो, परमेश्वर से जन्मे हो, तो आप झूठ नहीं बोल सकते. The same spirit that raised Jesus from the dead, he lives in you. और जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया, वो आत्मा आज आपके अंदर निवास करती है. And God has given that precious blood not to lie, to live a holy life.
और परमेश्वर ने अपना कीमती लहू दिया है झूठ बोलने के लिए नहीं, पर उस झूठ के ऊपर विजय पाने के लिए। So if you humble tonight अगर आज अपने आप को परमेश्वर के सामने आप झुकाओगे and surrender your tongue to God और अपनी जबान को परमेश्वर के हाथ में समर्पित and करोगे ask the healing to your tongue, और कहेंगे कि खुदावन मेरे जबान को पर तेरी चंगाई आ the जाए, Lord will touch your tongue और खुदावन आपके जबान को छू देगा and He will make your tongue a tongue of life. और आपकी जबान को वो जिंदगी देने वाला जबान बना देगा। Hallelujah. Praise the Lord. And second thing, you have to deposit His word in your heart. और दूसरी बात है कि खुदावन के कलाम को आपके दिलों में आपको भरना है। So whenever you be tempted by anger, अगर आप कभी गुस्से में आ जाते हो so the word of God will be released, not the evil words. और अगर आपके दिल में खुदावन का कलाम भरा हुआ है तो खुदावन का कलाम आपके मुंह से आएगा। So let us thank the Lord for this word. और खुदावन को शुक्र करेंगे ये वचन के We लिए, spend some time in prayer. और हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। Just open your heart and seek God, Lord. If there is anything unholy in me, you reveal me, O God. और हम थोड़ा समय उसके साथ में बिताएंगे और कहेंगे परमेश्वर ऐसी कोई भी बातें जो तुझे पसंद नहीं है अगर मुझ में है तो आज मुझे छुटकारा दे दे। Lord, I dedicate my tongue to your service. और खुदावन में मेरे जबान को तेरे को तुझे समर्पित करता हूँ तेरे कार्यों के लिए। I offer my body as a living sacrifice to you, O और God. खुदावन में अपने शरीर को जीवित बलिदान के लिए आपको चढ़ाता हूँ। I repent every sin that I committed through my words. और हर एक जो मैंने पाप किया है मेरे जबान के द्वारा उसके लिए मैं तौबा करता हूँ। Every poison that I released through my tongue. और हर एक पॉइजन जो मेरे जबान के जरिए निकली है, Lord, I repent, O God. और खुदावन में मुझे तू क्षमा कर। You heal my tongue. और आज तू मेरे जबान को छू और चंगाई You दे, heal my heart. और मेरे दिल को छू और मुझे चंगाई So दे, I can release only life-giving words. ताकि मैं खाली जिंदगी देने वाले बातों को खाली बोलूं, So I can release only your words, O God. ताकि खाली जिंदगी देने वाले और आपके कलाम को ही मैं बोल I सकूं। repent for my sin. और मेरे गुनाहों के लिए मैं तौबा करता हूँ। I put off this lying tongue forever. और मैं ये जो जबान जो झूठ बोलने वाली जबान को मैं निकाल देता हूँ मेरे लाइफ से। I remove the slandering spirit, the filthy language from my tongue forever. और जो गलत बात बोलने के लिए गाली बकने की जो भी ये जबान है इसको मैं निकाल देता हूँ यीशु के नाम से। I pray, Lord, heal my tongue. और खुदावन मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मेरे जबान के ऊपर तेरी चंगाई आ जाए। Ora saboro shaka riantoro shanda. Uraba karaba shaka baribobo shondorobo. Iraba kabara se.